Carbon, as we all know, is one of the 118 elements in our periodic table, which is found in the Earth. तो इस 6 को configuration में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 फर्स्ट शेल में और लास्ट शेल में 4. वर्सेटाइल है तो उसकी वर्सेटैलिटी का राज क्या है? What are the points need to know that leads to the versatility of the carbon? Okay. Now, what do we understand by allotropes of carbon? Allotropes of carbon are nothing but it's just like the different forms of carbon. Hello, welcome to another episode and part of the same chapter, carbon and its compound from class 10. So in the previous topic or the previous the topics which we took from the same chapter, हमने discuss किया कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कार्बन कैसा होता है, उसके एलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं. We discuss everything about carbon and why we are studying carbon in detail. Now in this part we would be going into the depth of the term called carbon compounds. So let's begin with the topic. Now when we talk about carbon and compound, so we can describe the compounds of carbon into 3 parts. So carbon compounds are those compound, if you see, carbon compound. Now compounds that contain carbon. Now any compound, what is a compound? Anything which has 2 or more elements. So in that case, if one of the element is carbon, they all are called carbon compound. Now in such cases, there could be 2 more things. One, organic compound. Now what is organic compound? Any compound that contain carbon and oxygen. Okay. Now हर चीज जिसके अंदर कार्बन है वो कार्बन कंपाउंड तो है ही है, पक्की बात है. लेकिन हर वो चीज जिसके अंदर कार्बन है जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो. वो ऑर्गेनिक कब होएगा? जब उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ेगा. ठीक है. तो एनीथिंग which contain carbon and oxygen, they are called organic compound. Organic का मतलब होता है they gets degraded into the soil. Now let's look upon the hydrocarbon part. What is hydrocarbon? Now anything which has carbon is a carbon compound, but in that compound, if with carbon there is hydrogen, then we say that as hydrocarbon. नाम सजेस्ट कैसे कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ कार्बन. So that means if the carbon compound has hydrogen in it, that is called a hydrocarbon. ठीक है. मेजरली हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है. Let's begin with the hydrocarbon part. So hydrocarbons are divided into 2 parts. One is aliphatic hydrocarbon and the other one is aromatic hydrocarbon. Okay. Now एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेसिक डिफरेंस ये है कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे विल हैव अ काइंड ऑफ स्मेल. एलिफैटिक whereas will not have any kind of smell or odor. Okay. Now apart from being aliphatic and aromatic, the hydrocarbons are further divided into 2 categories, which are saturated hydrocarbon or unsaturated hydrocarbon. Now what is being saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon? ये हमें तब समझ आएगा अच्छे से जब हम कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, सी के साथ H वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे. अभी आप सिर्फ ये समझ के रख लीजिए कि जो भी हमारे कंपाउंड्स है, अगर उनमें कार्बन कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सिंगल कार्बन बॉन्ड है, सिंगल, तो वो सारे मेरे अनसैचुरेटेड है. सॉरी, वो सारे मेरे सैचुरेटेड है. नाउ जो भी मेरे कार्बन कार्बन के बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होएगा, हम करते हैं ना कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर मेरा कार्बन कार्बन का कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर वो डबल या ट्रिपल होगा, देन दैट इज कॉल्ड योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ when you have the saturated hydrocarbon, they are called alkenes. What are they called? Alkenes. Okay. Now when you have unsaturated hydrocarbon, that means either they are having double bond. When they are having double bond, they are called alkenes, and when they are having triple bond, they are called alkynes. Clear? Now according to these 3
alkane, alkenes and alkynes, my whole carbon hydrocarbon के, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली 3 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है। एल्केन जो कि सैचुरेटेड होता है, फिर एल्कीन्स एंड एल्काइन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड। क्लियर? ऑलराइट, नाउ if you look at the general formula of the alkane, it is CnH2n plus 2. That means CnH2n plus 2. If let's suppose the carbon compound has 2 carbon atoms, that means C2N is my 2. So H2 into 2 plus 2. So in respect to 2 carbon atoms, how many hydrogen will be there? I am writing it here. C2H, 2 2s are 4 plus 2 is 6. So this becomes the general formula of my hydrocarbon, which has 2 carbon atom as a compound. Clear? तो हम ऐसे ही एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन का सबका जनरल फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे या होना चाहिए। लेट्स लुक फॉर एल्कीन्स। तो द जनरल फॉर्मूला इज 2NH2n। दैट मीन्स अगर मेरा 2 कार्बन एटम हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितना होगा? 2 into 2, दैट इज C2H4। क्लियर? अगर मैं एल्काइंस का देखती हूँ ऑन द अदर हैंड, दैट इज CnH2n minus 2। तो अगर मेरा कार्बन 2 हुआ तो H2 into 2 minus 2, 2 2s are 4 minus 2 is 2, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा C2H2। ये कैसे होगा? वी आर गोइंग टू डिस्कस इट डिटेल में in the structure form. Okay, now please write down this flow chart and the details are given here, and we'll move on to the next topic. All right, let's move on further. Now here we are discussing about the aliphatic hydrocarbon. Remember I told you hydrocarbons are divided into two groups, that is aliphatic and aromatic. We are discussing about the aliphatic one. Now aliphatic hydrocarbons are hydrocarbons that have chains of single straight chains of carbon atom. Now on that category you have saturated hydrocarbon जो मैंने अभी डिस्कस किया था, names are alkane. Now उसमें क्या होता है? C का single bond होता है. Okay, that means contain only single covalent bond between carbon and atom, also called alkanes. Now for example मैंने जनरल फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या बताया था? जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का होता है CnH2n plus 2। उस हिसाब से जब हमने 2 कार्बन एटम का निकाला था तो हमारे पास आया था C2H6। तो अगर मुझे इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखना होगा ना, तो देखिए कैसे लिखते हैं। C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी C के कितने और होते हैं? 4 होते हैं। एक तो शेयरिंग में चला गया, बाकी के 3 बचेंगे, तो उन सब में किसकी शेयरिंग होगी? हाइड्रोजन की। तो अगर हाइड्रोजन की सभी में शेयरिंग हो रही है तो हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए? हमारे हाइड्रोजन हो गए 6। तो परफेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया एज C2H6। क्लियर? ऐसे बनता है हमारा स्ट्रक्चर। नाउ सेम वे व्हेन वी लुक अबाउट द unsaturated hydrocarbon that has double or the triple bond. Now if you talk about the double bond first, that is alkenes, they have the general formula of CnH2n जो मैंने आपको पहले बताया। उस हिसाब से C2 का जो 2 कार्बन एटम के बीच में आपके सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन लग सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सी इफ आई से 2 कार्बन एटम और उसके बीच में 2 यानी कि डबल बॉन्ड है, तो अब मेरे इस कार्बन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4। तो अब मेरे पास इसके 2 और इसके 2 ही हाइड्रोजन लग सकते हैं। दैट मीन्स इट इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर। Now if we look for alkyne, that is triple bond, the general formula is coming out to be CnH2n minus 2. And if we go for C2, C के 2 molecules, C के 2 atoms, then the hydrogen is coming out to be only 2. How? Look,
if there are 3 sharing of electron between the carbon atoms, then only one hydrogen place is left to be shared. तो क्या बना, C के साथ 2 H only. So this justifies your structure with the general formula of the alkane, alkenes and alkynes. Understood? Now अब ये बात आ जाती है कि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवीजन क्यों कर रहे हैं. तो देखो बेटा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ऑल द कार्बन एटम्स के जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे फुल हो गए हैं. H ने ले लिया है और एक इस कार्बन एटम ने ले लिया है, मतलब सब उसका हाथ जो है वो सारा खुल चुका है, सारा फैल चुका है, सारा शेयर हो चुका है. ठीक है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता. ये सैचुरेट हो चुका है अगर मैं कहूँ. पर अगर आप यहाँ देखो तो कार्बन कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड है. ठीक है, एट एनी टाइम्स अगर कोई O आके बोलता है भाई मुझे कैन यू लेंड मी सम स्पेस, तो ये कार्बन बोलता है ठीक है मैं अपना इसके साथ बॉन्डिंग तोड़ देता हूँ, इसके पास भी एक स्पेस आ जाएगा, इसके पास भी एक स्पेस आ जाएगा. ओके O2 यू कैन कम एंड अकोमोडेट. हो सकता है ना पॉसिबल. यानी ये सैचुरेट नहीं हुआ. दैट मीन्स जो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो unsaturated होते. They are not saturated. They are still having the space to accommodate another element in their structure because they have double or triple covalent bond with the carbon. Clear? Now saturated hydrocarbons are more stable and less reactive. Obviously ये ज़्यादा stable है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है. Are more stable and less reactive. Are more whereas the unsaturated one are more reactive due to the presence of the multiple bond. So they react with other elements with more ease than the saturated one. Clear? Please note down the details and the structure which I have drawn, and we'll move on to the further topic. All right, let's move. Okay, now depending upon the alkane, alkene and alkyne, we have discussed the structure, the general formula, why they are like that. Now we have just given the chart for alkane, alkene and alkyne. देखिए ये alkene का chart है. If we talk about only single carbon, now the single carbon has one carbon atom. So with respect to one carbon atom, there has to be 4 hydrogen atom. Likewise, if you have 2, then there has to be 6. तो हमारा जो CnH2n plus 2 का जो हमारा CnH2n plus 2 का जो हमारा फॉर्मूला है वो इन सब में फिट बैठता है. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ब्यूटेन लिया. जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं. अब अगर मैं ये हिसाब से देखूं तो C4H2 into 4 plus 2 into 4 plus 2, 2 4s are 8, 8 plus 2 10. तो C4H10 जो होता है वो मेरा फॉर्मूला आता है. आइए देखते हैं, गिनते हैं कि क्या C के साथ H10 होता है. तो C है 1 2 3 4, ओके करेक्ट. H है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, the formula is correct. So likewise we can go through each and every structure. आप लोग जा सकते हो, पढ़ सकते हो, एक एक कार्बन एटम लो और उसके हिसाब से जनरल फॉर्मूला लगाओ और एल्केन के जो फॉर्मूलेज हैं वो आप निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो. ओके, अब जरूरी बात ये नहीं है कि आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो. जरूरी बात हमें एक और चीज देखनी है कि हम अगर एक कार्बन एटम लेते हैं, इफ लेट्स सपोज देयर इज ओनली वन कार्बन एटम, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड मेथ. Meth is for 1, eth is for 2, prop 3, but 4, pent 5 कार्बन एटम, hex 6 कार्बन एटम, hept 7 कार्बन एटम, oct 8 कार्बन एटम, nano 9 कार्बन एटम and so on, deca के साथ 10. Okay, so likewise you can name the hydrocarbon as according to the number of hydrogen. सुफिक्स में जुड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेथ, एथ, और लास्ट में जुड़ेगा अगर वो एल्केन है तो एन. जैसे कि एथ 2 कार्बन एटम, एन, एथेन. ठीक है, तो इथेन नाम हो जाता है. क्लियर होगी बात.
अब हम आ जाते हैं हमारे एल्कीन्स पे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n, ठीक है। आप उसमें हिसाब से एल्कीन के अंदर अगर आप सिर्फ सिंगल कार्बन एटम ले सकते हैं क्या? कैसे लेंगे? एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपके पास सिर्फ सिंगल कार्बन एटम है, मेथ है, आप किस दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हो? नो। तो मेथीन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है एल्कीन। स्टार्ट कहाँ से होता है? एटलीस्ट इथीन से। क्लियर? इथीन में दो कार्बन एटम है जिसके बीच में दो डबल बॉन्ड है। कैन यू सी दिस? एंड देन रिस्पेक्टिवली वी हैव द कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम। दीज आर एक्चुअली, there is some glitch, this should not be there because then the valency will be disturbed. Clear? Now accordingly, when you see alkynes, the general formula is CnH2n minus 2. So if you take it, that is possible because आप वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो दो कार्बन एटम के बीच में, and then the rest is given to carbon which is hydrogen which is only 2. ठीक है, तो उस हिसाब से आप सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। नेमिंग होगी 1 मेथ, 2 कार्बन एटम एथ, 3 कार्बन एटम प्रोप। तो अगर मुझे प्रोप आइन देखना है डब ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो वो मैं क्या बोलूंगी? प्रोप प्लस आइन, दैट इज प्रोपाइन। क्लियर? और उस पूरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी। क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। इफ दे आर स्ट्रेट, then it is called straight chain. If they are branched, then it is called branched chain. If they are cyclic in nature, can you see this? इसने पूरा है नॉर्मली CH, ठीक है ना, लेकिन उसने साइकिल बना रखा है, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक वन। So on the basis of the structure, what kind of structure the hydrocarbon is having? We have 3 types. The straight chain. Each carbon atom is bonded to either one or two other carbon atom. तो ऐसे कार्बन एटम की चेन होगी, ऐसे ऐसे सिंगल, उसके साथ रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन। ब्रांच्ड, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1, 2 और मोर देन 2 अदर कार्बन एटम। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा यहाँ देख रहे हो आप, ये वाला जो है दिस इज नॉट 2 बट मोर देन 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन। नाउ इफ यू सी कार्बन एटम्स form a closed ring structure, that is called a cyclic form. This is called cyclohexane. Now it is hexane only. Hexane means 6 carbon atom with ane, that is alkane. So they have formed a chain structure, that is why they are now being called as cyclohexane, not normal hexane. Clear? cyclohexane को बेंजीन भी बोला जाता है। नहीं सॉरी, बेंजीन जो होता है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो उसमें भी 6 कार्बन एटम का ही चेन होता है। व्हेन यू सी दिस, नाउ इस बेंजीन में दिस इज इन, दैट मीन्स दिस इज माय एल्केन एंड दिस इज माय एल्कीन। यू गॉट द डिफरेंस? ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस while we move on to the next topic. All right, I hope these all concepts are clear. Let's take a question. Now in this, the image represent the structure of few hydrocarbons. Which of these hydrocarbons can be classified as alkynes? Alkynes मतलब कौन सा? 1 2 3, थर्ड वन, मतलब जिसके अंदर कौन से बॉन्ड्स थे? कौन से बॉन्ड्स? यस यू आर राइट, ट्रिपल बॉन्ड्स। नाउ आप इनमें से देख के आप बता सकते हो किसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें है और इसमें है। एनी वन ट्रिपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है सब में तो हो ही नहीं सकता है ना। तो एनी वन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एक एल्काइन होता है। नाउ व्हाट इज द आंसर? ओनली ए? नहीं। ओनली बी? नो। बोथ ए एंड डी एंड बी एंड सी। तो हमारा आंसर है बोथ ए एंड डी। क्लियर? लेट्स मूव टू द फर्दर वन। नाउ अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप।
अब हमें सब समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, सी और एच वाले को। हाइड्रोकार्बन्स की 3 फैमिली है, 3 मेजर फैमिली का नाम है एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली और एल्काइन फैमिली। अब ये तो हो गए मेरे 3 ब्रांचेस। अब इन 3 ब्रांचेस को भी मैंने एक फर्दर डिवीजन, सरनेम दे दिया है, ये समझ लो। फर्दर डिवीजन जो दिया है उसको मैं बोलती हूँ फंक्शनल ग्रुप। अब जब मेरे इन 3 फैमिली के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे तो उसको एक सरनेम दे दिया जाएगा, आप ये समझ लो, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, they are specific group of atom within a molecule that determine the chemical properties of or reaction of the compound. Now मैंने आपको क्या बोला, 3 तो मेजर फैमिली है, पर जैसे मैं एक सरनेम दे देती हूँ, आज मैंने बोल दिया कि दिस इज एक्स, so this belongs to this community, this is y, this belongs to that community, this is z, this belongs to this community, उनके अलग अलग ट्रेड्स होंगे, ऐसा ही होता है हमारे सरनेम में। एग्जैक्टली तो अब मेरे 3 फैमिली के बीच में भी अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, दे आर दैट एटम्स, दे आर दैट ग्रुप ऑफ एटम्स जो स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज दे देता है या रिएक्शन प्रॉपर्टीज या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स दे देता है इनटू दैट हाइड्रोकार्बन। समझ गए? तो अच्छे से और समझेंगे, पहले आप समझो हमारे पास कितनी ऐसी फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने सरनेम्स हैं। समझ गए? ओके, पहला सरनेम है अल्कोहल। मैं थोड़ा सा क्रम को चेंज कर रही हूँ, पहला है मेरा अल्कोहल, मैं फर्स्ट इसको मान रही हूँ, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब होता है जो भी अल्कोहल फैमिली का होगा उसके स्ट्रक्चर में OH दिखेगा ही दिखेगा। हम बोलते हैं ना, जो भी पंडित होगा क्या वो तिलक लगाएगा या फिर कुछ और चोटी बांधेगा, जो भी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो भी कार्बन कंपाउंड जिसके पास OH दिख रहा है वो अल्कोहल फैमिली का, ठीक है। अल्कोहल फैमिली के लोगों पे जो सरनेम लगता है वो लगता है ऑल। क्या लगता है? ऑल। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये कार्बन कंपाउंड है, हाँ है, इसमें एक OH जुड़ा हुआ है, हाँ है, इसका मतलब ये कार्बन कंपाउंड कैसे फैमिली का है? अल्कोहल फैमिली का। अब इस फैमिली में अगर मुझे इसको नाम ये नहीं होता तो नाम क्या देती? प्रोपेन, ठीक है। बट क्योंकि मैंने इसमें अल्कोहल फैमिली डाला है तो अब मैं इसका नाम क्या दूंगी? प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनॉल, ठीक है। तो मैंने इसको ऑल सरनेम दिया है तो प्रोपेनॉल, ओके। अब सिमिलरली अगर मेरे पास एल्डिहाइड फैमिली है, ठीक है। एल्डिहाइड फैमिली का पहचान होता है C के साथ एक डबल बॉन्ड का O और एक H, ये होता है एल्डिहाइड का पहचान, और इसके साथ कोई और चेन जुड़ी कार्बन कंपाउंड। तो नाउ उसका जो सरनेम का जुड़ेगा वो होगा एल, एल, ठीक है। यहाँ देखो, क्या ये 3 कार्बन एटम्स हैं? हाँ, प्रोप है। अब अगर ये नहीं होता तो ये होता प्रोपेन, लेकिन मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स दिस इज प्रोपेन, नहीं प्रोपेनल। आप बोलोगे मैम ये तो फंक्शनल ग्रुप में हो तो हमने इसको काउंट क्यों किया? क्योंकि ये मेन कार्बन चेन का पार्ट है, तो हम ये कार्बन को भी पकड़ेंगे। दिस इज 1 कार्बन एटम, दिस इज 2, दिस इज 3। तो इन योर aldehyde family this has to be in the main carbon chain if when you count the number of carbon atom, clear? Now जो तीसरे नंबर की फैमिली मैं बता रही हूँ वो है कीटोन। कीटोन में कीटोन का जो पहचान है वो है कि बीच में एक कार्बन एटम जिसके साथ 2 बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा, ये उसका पहचान है। और सरनेम में क्या जुड़ता है? ONE, ओन, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 प्रोप है, अगर ये नहीं होता तो ये होता प्रोपेन। अब ये बीच में देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, दैट मीन्स ये प्रोपेन नहीं प्रोपेनॉन है। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द another group which is called the carboxylic acid group. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहचान होता है C डबल बॉन्ड O और अल्कोहल का OH एक साथ होना चाहिए। अगर ये है ये नहीं है तो भी नहीं, अगर ये है और ये नहीं है तो भी ये प्रोपेन,
जाएगा ऑन, मतलब कीटोन हो जाएगा, एसिड नहीं। दोनों चीज होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल कार्बन एटम की चेन चलनी। उसका जो सरनेम का जो लास्ट में जुड़ता है वो जुड़ता है ओइक। क्या जुड़ता है? ओइक। अब आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, हाँ, अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इसका नाम होता प्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेन। अब फंक्शनल ग्रुप है तो मेरे को ओइक जोड़ना है, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? ओके। इसके अलावा आपके पास कुछ हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं आपके हैलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये अगर आपके किसी भी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाए तो उनको कहेंगे हैलोजेंस, ठीक है। लेकिन ग्लिच ये है कि उनका बाद में नहीं, पहले जुड़ेगा। जैसे अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस वाले चीज पे ये वाला चीज मिटा देती हूँ, मतलब मैं अल्कोहल ना लगा करके मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देती हूँ, तो ये हो जाएगा, अल्कोहल तो अब है नहीं है, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। समझ गए आप? क्लोरोप्रोपेन। नाउ क्यों? क्योंकि हैलोजन का जो भी सरनेम है, जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, वो पहले जुड़े with the main carbon chain. Clear? Now the last one here is your alkenes, जो मैंने आपको बता दिया था, सुफिक्स इन से होता है, CH3 या फिर CH3CH2। अब ये होता है मिथाइल ग्रुप। अगर आपके पास CH3 का कोई ग्रुप जुड़ा है मेन कार्बन एटम से तो उसको बोलेंगे हम मिथाइल, और अगर CH3CH2 होगा तो उसको बोलेंगे मिथाइल। ना इसको कंबाइंड फॉर्म में C2H5 भी बोल सकते हैं। क्लियर? So these are called methyl groups and ethyl groups. I hope this is all well versed. Please write down the functional group name, their prefix or suffix, and the structure which distinguishingly tells you about whatever they are. Clear? So then we will be moving to the further topic. All right, let's move now. Now here, according to the IUPAC nomenclature, we are going to distinguish, or we are going to give names to our different hydrocarbons. Now identify the longest chain. Find the longest continuous chain of the carbon and use it as the base name. Let's suppose you are given with this structure. Now you have to count the number of carbon. So you have to identify the longest carbon chain according to the carbon atoms, ठीक है, और वही आपका होगा base for the nomenclature. Now this is 1, 2, 3 carbon, that is we have 3 as पेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंट ना। अब ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सारे एल्केन वाले फैमिली के हैं, और इसके साथ जुड़ा है मेरा एक OH। तो OH वाला जो फैमिली है वो अल्कोहल वाला फैमिली है और उसका सरनेम है ऑल, तो पेंटेनॉल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा मेरा नाम। क्लियर हो गया? नाउ अगर सॉरी ये हो जाएगा मेरा 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा, I'm sorry, I got confused with this. It is propanol. Clear? Okay. Now, if you have 5 carbon atoms, then it will become pentanol. Okay. Now, next we have already discussed. Next is a functional. Now, after you have discovered कि कितने कार्बन एटम हैं, ठीक है, कितने कार्बन एटम हैं, you will see whether they are having what functional group. So prioritize the functional group based on the precedence and modify the suffix and prefix. Find accordingly. Now if you have alcohol उसका ऑल लगेगा, if you have ketone उसका ऑन लगेगा, उस हिसाब से आपका नाम बदल जाएगा. Then the suffix starts with a vowel E of the carbon chain is dropped. For example, propane,
कीटोन becomes प्रोपेन, ई हट जाएगा और प्रोपेनॉन जुड़ जाएगा। क्लियर? क्योंकि कीटोन का ऑन जो होता है वो होता है सरनेम। क्लियर? If the carbon chain is unsaturated, then the final ane in the name of the carbon chain is substituted by the ene or ine. जैसे कि अगर ये मेरा प्रोपेन ना होकर के प्रोपीन होता तो ये हटके बन जाता प्रोपीनॉन, ठीक है, या फिर प्रोपाइनॉन। क्लियर? बस सिर्फ इतना ही फर्क आता आपके अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। क्लियर? Otherwise, I guess everything is clear now. Let's move. Now, write the IUPAC name of the following. आपको इन सब के IUPAC नाम लिखने हैं. Please note down these name and this you have to write the names of each and every formula which is given here as. Now, look at the number of carbon atom. First thing, 1, 2, that means eth. Now this is alkane, so ethane. Now this is OH, यानी कि alcohol है, ethanol. Clear? So CH3 CH2 OH is ethanol. Likewise, look for the second one, 1, 2, 3, that is prop. Now बीच में C double bond O है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन. So propane. Okay. Next is 1, 2, 3, but there is one middle में double bond और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो क्या आएगा? Only prop. Clear? Next is this one which is having C double bond OH. That means it's a carboxylic acid. And how many carbon atom? 1. So this is methanoic acid. Clear? Now look for this one, 1, 2, 3, but this is carboxylic acid. So that means this is propanoic acid. Now this is 1, 2, but this CHO is aldehyde group. So that means this is ethanol. Al is the suffix for the functional group aldehyde. Now this is again C double bond OH. And how many carbon? 1, 2. That means ethanoic acid. Clear? This one is 1, 2, 3, but again it is aldehyde group. So that means 3 is propanol. Clear? Then this is Br, halogen. How many carbon atom? 1, 2, 3. So this is bro, mo, pro, and all single bond, propane. Okay? This is 3 bond with 1, 2, 3 carbon atom. So this becomes propyne. Clear? This is 1, 2, 3 carbon atom with an alcohol functional group. So this becomes propanol. Okay? Now this is 1, 2, 3 carbon atom with with chlorine and an alkene. Okay? So this become chloro. First the functional group chloro. 1, 2, 3 carbon atom, that is chloropropene. Clear? I hope everything is clear. Please note down the formula, the names, and you can tally out and make the structures even. That is your task. So you have to make the structure of each and every formula and the name which is given here in the slide, and we'll move on to the next one. Please copy it down. All right, let's move on. So you can take a screenshot. This is the answer for the formulas which we had given in the last slide. Now next, let's move on to the next question, which is you have to write the names of each structure which is here. So we have 5 structures according to the double bond, the functional group, which is this one or this one or this one
or you have to just choose a methyl group and write their names. Your task, take a screenshot and according to the rules what we have discussed, write the names of each of the structure. All right. Okay, let's move. Now, identify the functional group present in the following compounds. Now, if you look upon this one, what is the functional group? That is OH. What is the functional group that is here? OH represent alcohol. So, it is alcohol. Clear? Now, see alcohol. Now, the second one is COOH. COOH is a functional group which represent the carboxylic acid. The other one is CHO. CHO represent aldehyde, that means it's a aldehyde group. And this middle C double bond O represent both side, they have the carbon chain that represent the COO, that is ketone. Ketone group, so that is from the ketone functional group. Okay, next we will be coming up with the homologous series. Now, what do you mean by homologous series? Homologous series is a group of organic compound with a similar general formula and the functional group and the chemical properties that differ by only CH2 unit per molecule. Let's suppose here, अगर मैं आपको simply समझाऊं, मेरे पास अगर मैं मिथेनॉल लिखती हूँ तो ये मेरा CH3 है और ये OH है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक CH2 ऐड करूं बस, तो कहाँ ऐड कर सकती हूँ? यहाँ पे ये मेरा CH3 रहा, इस कार्बन के साथ एक CH2 ऐड कर दिया ना, ये हो गया ना, C के साथ H कर दो और ये हो गया। तो ये वाला और ये वाला क्या होगा? होमोलोगस हो जाएगा। होमोलोगस मतलब सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट दूसरे यूनिट से सिर्फ CH2 से डिफर कर रहा है। समझ में आ गया? अच्छे से और समझाती हूँ मैं आपको। नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर हियर, now here can you see it is CH4. अगर आप CH4 में एक और C डाल देते हो, अगर आपके पास CH4 है, ठीक है, और इस पे अगर आपको होमोलोगस सीरीज बनाना है, यानी कि इसका जो दूसरा होमोलोगस सीरीज होगा उसमें CH2 ज्यादा होगा, यानी एक C और 2 ज्यादा होगा। तो देखो मैंने 2C कर दिया और 4 और 2 कितना हो गया? 6, यानी कि ये था मीथेन और ये था इथेन। हो गया आपका फॉर्मूला एल्केन का। तो होमोलोगस सीरीज और कुछ नहीं होता, दे जस्ट डिफर in the structural formula by H2. फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, कोई और एलिमेंट अगर कोई और लगा होगा वो सब सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बॉन्डिंग विल बी सेम। ऐसा नहीं है कि मीथीन जो है वो प्रोपेन का होमोलोगस सीरीज नहीं। डबल बॉन्ड्स भी मैटर करते हैं, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बाकी सब सिमिलर रहेगा, ओनली सिर्फ CH2 क्लियर। नाउ जो आपका मिथेनॉल है या इथेनॉल है या प्रोपेनॉल है, ये एक एक CH2 यूनिट बढ़ रहा है, दे ऑल आर योर होमोलोगस सीरीज। क्लियर। ऐसे ही हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबके लिए बोल सकते हैं। ओके, नाउ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट हैज अ जनरल फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इट हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं कहूं कि मेरा इथेनॉल, ठीक है, वो इथेनॉन का होमोलोगस सीरीज है, तो क्या ये सही है? गलत है। उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाएगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक CH2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि क्या मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल होमोलोगस है, नहीं, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल है, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल है, वो आपस में सिर्फ CH2 यूनिट से ही तो डिफर कर रहे हैं, ठीक है। Okay, then the member of the homologous series have a similar chemical formula. Obviously, अगर same functional group है तो उसका chemical formula same रहेगा, ठीक है। The member of the homologous series shows a gradation in the physical properties with an increase in the molecular mass, ठीक है। Of course, if you have CH
4 and you're increasing it by CH2 unit, then of course C का मास और H के दो मास तो इंक्लूड होगा ही ना, तो उनका मास भी उस हिसाब से बढ़ेगा और चेंज होगा. The difference in the molecular mass between the two successive homologous series is 14 unit. आइए इसको समझते हैं. CH2 का मतलब होता है C का वेट है 12 और H का होता है 1 इंटू 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाता है 14. दैट मीन्स एक कार्ब CH2 यूनिट 14 का होता है. तो जैसे जैसे सीरीज में होमोलोगस सीरीज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसका 14 यूनिट माइक्रोन increase होता है homologous. Are we all clear with this? Please write down the definition, structure and the characteristics of the homologous series. We'll move on to the further topic. Alright, let's take up some questions. Now, consider the following statement about the homologous series of carbon A as succeeding by number differ by CH2. The melting point and the boiling point increases with the decreasing molecular mass. The difference in molecular mass between two successive member is 14. CH2, C2H2 and C3H3 are not successive members of the alkyne series. The correct statements are, आप बताइए, the correct statements are A and B, ठीक है ना, या फिर B का B and C, या फिर ऑप्शन C का A and C, या फिर ऑप्शन D है A and D. आप बताइए कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. अगर जो पहला स्टेटमेंट है द सक्सीडिंग नंबर बाय मेंबर डिफर बाय द CH2 यूनिट, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. यस, द सक्सेसिव जो होमोलोगस सीरीज है वो CH2 से ही तो डिफर करता है, यानी कि मेरा ए तो करेक्ट है, तो जिस जिसमें भी ए है वो करेक्ट है, यानी ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी. अब आप आ जाइए पॉइंट नंबर बी पे. द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. क्या मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होता है सक्सेसिव में? इंक्रीज होता है, तो बी तो करेक्ट नहीं है, यानी कि ये गलत है. ठीक है, अब आ जाते हैं सी और डी पे. ठीक है, दैट मीन्स द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंबर इज 14. यस, दिस इज करेक्ट, यानी कि ए एंड सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नॉट दिस वन. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ which of the following belongs to a homologous series of alkynes? अब ये आपको सारे स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे C6H6, C2H6, C2H4, C3H4. अब आपको देखना है जनरल फॉर्मूले में फिट कौन सा हो रहा है. अगर आपके पास एल्काइन है तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. अब आप देखो C6 डाला है तो H कितना होगा 2 इंटू 6 माइनस 2, तो C6H 6 2 जा 12, 12 माइनस 2 इज 12 माइनस 2 इज 10. ओके, नाउ CnH2n-2 अगर हम करें तो C है 6, N है आपका 2 इंटू 6 माइनस 2, उस हिसाब से 6 2 जा 12 माइनस 10. आगे नेक्स्ट वाला हो जाएगा C2H6. अब आप देखिए तो ये तो मेरा करेक्ट नहीं है, तो C अगर N अगर 2 है तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाता है C2H2 2 जा 4, 4 माइनस 2 C2H2. ये भी करेक्ट नहीं है. ठीक है, अब अगर मेरा C2 है तो क्या H4 होता है? नहीं, C2H2 होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है. अब C3H2n विच इज 3 माइनस 2, तो ये क्या हो जाता है 3 2 जा 6 माइनस 2 4, तो C3H4. yes, this is correct. Clear? You're going to see with the general formula. Next is, what is the homologous series? If they ask you this question with an example, you're going to write homologous series is a group of compound with the same functional group where each successive compound differs only by CH2, that is a methionine group. For an example, alkanes CnH2ns form a homologous series
ethane in the first member, ethane in the second, propane in the third, butane fourth, and so on. Clear? Now, consider the following organic compound. This is the organic compound. Name the functional group present in these compound. Now, what is the functional group here? So, this is C double bond O and H. That means it's an aldehyde group. So, the functional group here is aldehyde. Now, write the general formula for the compound for this functional group. So, general formula क्या होता है? CnH2nO. Okay, ये होता है general formula for aldehyde. State the relationship between these compound and draw the structure of any other compound having the similar functional group. अब मेरे पास ये 1 2 3 यानी प्रोपेनल बना हुआ है और इथेनल बना हुआ है. आप ब्यूटेनल बना सकते हैं. दैट मीन्स हैविंग 1 2 3 4 carbon atom having the same functional group, that is aldehyde. ठीक है. So compound 1 is propanol and the compound 2 is ethanol. They belong to the same homologous group, whereas each successive compound differs from a previous one by CH2 unit. I hope you have got the topics and the things which we have done till now. For the next topics and the further things of the same chapter, we will be discussing in the next part. So till then, see you.